हेलो। मैं फिर से आ गया हूँ इंडिया फुटबॉल अपडेट्स लेके। लेट्स मतलब मैं बहुत देरी से वीडियो आया क्योंकि बिकॉज आई एम अनेबल टू गिव टाइम टू यूट्यूब। अगेन वही पता है तुम लोग के लिए बहाना लग रहा है, लेकिन सच्ची में मैं टाइम नहीं दे पा रहा। लेट्स क्विकली गो बैक टू आवर फुटबॉल डिस्कशन। पहले आते हैं हम डुरैट कप के बारे में बात करते हैं। तो हम अब फिक्सर बाकी के फिक्सर हम डिस्कस करेंगे जो जो मैंने बाकी छोड़े थे। लेट्स कम टू अगस्त 4 फिक्चर्स। अगस्त 4 में था जमशेदपुर एफसी वर्सेस एससी दिल्ली। एससी दिल्ली हैज हैड वन द मैच बाय स्कोरिंग 2 गोल्स। 1-2 का स्कोर था। दे वन द मैच बाय स्कोरिंग 2 गोल्स। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट फिक्चर ऑन द सेम डेट which was Mohun Bagan versus South United. South United FC. Mohun Bagan has won the match by scoring 8 goals with a bang. They have scored 8 goals. पता था होने ही वाला था साउथ यूनाइटेड अगेंस्ट ओपोनेंट लाइक साउथ यूनाइटेड एफसी, ये होना ही था. Now let's come to the fixture in August 5 which is Neroka FC versus Indian Navy. आई एम काइंड ऑफ शॉक्ड कि इंडियन नेवी 2 गोल से मैच जीता है. आई वाज शॉक्ड. आई एक्सपेक्टेड नेरोका टू विन बट अनप्रेडिक्टेबल. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट मैच. इंडियन आर्मी वर्सेस बागपत बनारस बागपत एफसी. इंडियन आर्मी स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट बागपत, विनिंग द मैच 4-0. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद बनारस बागपत परफॉर्मेंस. मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड. मेरे को लगा था एटलीस्ट एक मैच जीतेंगे या मैं इतना भी होप कर रहा था कि कम से कम हम राउंड ऑफ 8 जाएंगे, बनारस बाग को राउंड ऑफ 8 जाएंगे. बट दिस टीम हैज़ डिसअपॉइंटेड मी इन दिस 2026 डुरैंड कप. हेवीली डिसअपॉइंटेड. आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन दिस टीम. नाउ लेट्स कम टू अगस्त 6 फिक्चर्स. बोडोलैंड एफसी वर्सेस FC1. Bodoland FC won by 3-0, won the match by 3-0. And the next match, which was Nongsek versus Langsining, it was a draw, 2-2. They both scored 2 goals against each other. It was a draw. Now let's come to the fixture of August 7, which is East Bengal versus South United FC. East Bengal won the match by scoring 5-0, by scoring 5 goals against them. Now let's come to another fixture which is SC Delhi versus Defenders FC. SC Delhi scored 7 goals against Defenders FC. It was again expected. Defenders FC is a lower ranked team and not that much of a professional club. Now we'll come to our next fixture which happened in August 8. Shillong Lajong versus Mumbai FC. Shillong Lajong won the match by scoring 5-0 against Mumbai FC. Again, I'm disappointed with Mumbai FC. I thought it's a I-League 3 क्लब हुआ करती थी, कम से कम कुछ एटलीस्ट एक मैच जीतती. आई होप. मेरे एक्सपेक्टेशन से, इस टीम से भी एक्सपेक्टेशन थे, बट आई एम डिसअपॉइंटेड. देन आता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मॉर्निंग स्टार. नॉर्थ ईस्ट वन द मैच बाय स्कोरिंग 4 गोल्स एंड मॉर्निंग स्टार स्कोर 1. एक्चुअली स्कोर था 4-1. So North East won the match. In August 9, Trau FC versus Indian Navy. Trau FC won the match by scoring 2 goals against Indian Navy. Score था 2-1. It was an average match. Let's come to the मतलब August 9 में एक ही फिक्सर था जो कि मैंने अभी बोला, Trau FC versus Indian Navy, यही हुआ था. Now we'll come to August 10, which is Mohun Bagan versus CISA Protectors. It was kind of मेरे को लगा ही था इतने गोल से ही जीतेंगे. 6 गोल्स. दे हैव मोहन बगान स्कोर्ड 6 गोल अगेंस्ट CISA प्रोटेक्टर्स. होना ही था. CISA प्रोटेक्टर्स, दे हैव कंसिडर्ड लॉट ऑफ गोल्स ऑलरेडी. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम CISA प्रोटेक्टर्स. Let's come to another match which happened on the same date. Is SC Delhi versus Indian Air Force. They won the match. SC Delhi won the match by scoring 7 goals against them. Kind of a walkover, piece of cake for them, for SC Delhi. Now let's come to the fixture on August 11. North East United versus FC1. FC1 थोड़ा अच्छा ही खेला because they scored 1 goal against North East United. The score was 3-1. North East United won by scoring 3 goals. Then we will come to Nongsek versus Mumbai FC, which happened in August 11. Nongsek won the match by scoring 7-0 against them. Again disappointed with Mumbai FC. Like I literally, मेरा होप था कि मुंबई FC थोड़ा अच्छा करी, बट
Then we'll come to Nero August 12 August 12 का fixture which happened between Neroka FC versus FC Rangdai. Neroka FC won the match by scoring 3-1 by the score of 3-1. They scored 3 goals against FC Rangdai. Even FC Rangdai also played well. Kudos to them. Now we will come to the next match which happened in the same fixture, which is Mohammedan SC versus Indian Army. I am very shocked that Indian Army won the match by 2-1. मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मोहम्मदन एससी हारेगी because they are a professional club and Indian Army is a amateur semi-professional club. Indian Army is filled with semi and amateur players. Like it was an upset, shocking upset. We'll come to the August 13 match fixture, which is the last fixtures of the group stage of Durand Cup, which happened between Bodoland FC versus Morning Star. Bodoland won the match against Morning Star by 6-0. I actually did not expect this type of walkover. मैंने को लगा था Morning Star भी fight back करेगी, but okay. Now we'll come to the match of Jamshedpur FC versus Indian Air Force. Jamshedpur won the match 6-0, predictable. ये होना ही था. Then we'll come to the another fixture, which is last fixture, which is Shillong Lajong versus Langsini. I am kind of shocked. Langsini ने Shillong Lajong के साथ draw किया था. 2-2 का score था. They actually draw the match. I am shocked because Shillong Lajong, अगर आप उनका last IFL season देखा होगा, they played very good. They almost got promoted to ISL. They played extremely well with an Indian squad. So I'm shocked that Langsing FC, which is a state division club, can drew with the IFL club. I'm very shocked. It's an upset. मैं expect ही नहीं किया कि Shillong Lajong से draw करेगा. Now we'll come to Durand Cup discussion के बाद we'll come to the ACL 2 preliminary stages का जो रिजल्ट आया है हमारे इंडियन क्लब्स का. तो आपको जैसे कि पता है कि ACL 2 के प्रीलिमिनरी ग्रुप स्टेज मैचेस हुए थे, जो कि विच वर हैपेंड बिटवीन फर्स्ट FC गोवा वर्सेस आर्काडाग एंड ईस्ट बंगाल वर्सेस अल अराबी. सो ईस्ट बंगाल इज क्वालिफाइड फॉर ACL 2 ग्रुप स्टेजेस बाय विनिंग द मैच against Al Arabi by 4-1. It was like a very good win. 4-1 से हमने मैच जीता. बट FC गोवा वाला मैच ने मुझे डिसअपॉइंट किया बिकॉज FC गोवा लॉस्ट 3-0 to Arkadag FC in their home ground. I kind of wanted FC Goa to play more better and even win, qualify for ACL 2, but they lost the match and went to the group stage of Asian Challenge League, Asia's Challenge League. मैं FC गोवा से मेरा बस यही होप है कि वो चैलेंज लीग में अच्छा परफॉर्म करे, मे बी फाइनल्स या सेमीफाइनल्स तक जाए, ताकि हमारे जो कोएफिशिएंट पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज होए. इवन आई विल ऑल द बेस्ट टू ईस्ट बंगाल फॉर ACL 2 ग्रुप स्टेज ऑल्सो. आई होप दे प्ले बेटर एंड इंक्रीज आवर कोएफिशिएंट पॉइंट्स अप. नाउ अब आते हैं न्यू और भी फुटबॉल अपडेट्स को लेके, जो कि है आप अंडर 15 जो वर्ल्ड कप का है, हमारा टीम अभी भी बनानी है, तो उसका हेड कोच को लेके फियास्को भी हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि ये FA ने डिसीजन दिया था कि बिबियानो को एज अ कोच एंड रंजीत बजाज को एज अ मैनेजर रखा जाएगा. देन आफ्टर सम डिसएग्रीमेंट्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्ले स्टाइल्स, बिबियानो रिजेक्टेड द ऑफर. Even Rajit Bajaj also rejected the offer and even made a video about it in Instagram and Twitter. फिर जब रंजीत बजाज को पता चला कि बिबियानो हैज़ रिजेक्टेड द ऑफर, he again offered that कि हाँ कि मैं फिर से तैयार हूँ, मैं खुद मेरे कोचिंग स्टाफ सब कुछ मेरे ही होंगे. he again accepted. फिर क्या हुआ कि अब उसके बाद अब अपडेट ये आया कि बिबियानो ने भी अब रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया है टू बी बिकम द हेड कोच. तो फाइनली AIFF ने क्या किया, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है इस चीज़ के बारे में, AIFF ने क्या किया, दे हैव पुट हेड कोच बिबियानो एज हेड कोच, सुखविंदर सिंह एज असिस्टेंट कोच ऑफ बिबियानो. सुखविंदर, इफ यू guys don't know, सुखविंदर सिंह इज एन प्रो कोच in the Minerva Academy and Ranjit Bajaj as manager.
So I hope these people cooperate and do good in the under 15 World Cup for India. I hope they cooperate because both Ranji Bajaj and Bibiano are very good at their position, are good, very good. They have brought results. So best of luck to them. अब आते हैं एक और अपडेट को लेके, जो कि है फीफा आशियन कप को लेके। ये पता चल रहा है कि इंडिया AIFF ने आशियन कप से विड्रॉ कर लिया है बिकॉज उनको ब्राज़ील वाला मैच के साथ ब्राज़ील को मैच को प्रायोरिटी देना है एंड दे कैन नॉट फील्ड टू टीम्स टुगेदर। और इस चीज़ को आशियन कप को कंपेंसेट करने के लिए AIFF, मतलब ये भी रूमर्स आ रहे कि AIFF इज कॉन्टैक्टिंग 2 वर्ल्ड कप लेवल टीम्स। मोस्ट प्रॉब्ली रूमर्स है कि केपे वर्डे एंड उरुग्वे के साथ फ्रेंडलीज, एक और 2 फ्रेंडलीज होंगे हमारे इंडिया के साथ। बट आई काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, मैं काइंड ऑफ डिसअग्री विद दिस। हमें आशियन कप से नहीं जाना चाहिए था। वी कुड हैव यूज्ड आशियन कप एज ए एक्सपोजर फॉर आवर अंडर 20 बॉयज़, अंडर 23 लेवल प्लेयर, अंडर 23 अंडर प्लेयर्स, कि उनको इंडियन नेशनल टीम में एक्सपीरियंस मिल सके, उनको और गेम टाइम मिल सके। बिकॉज अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, अंडर 23 के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा गेम टाइम मिल जाता, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाता। तो वी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी बाई ऑप्टिंग आउट ऑफ आशियन कप अकॉर्डिंग टू मी। अब लास्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ डुरैंड कप के क्वार्टर फाइनलिस्ट इन 16। मैं एक सेकेंड वेट, वेयर इज इट, अरे यार मैं भूल जाता हूँ। या क्वार्टर फाइनलिस्ट जो कि फिक्सचर है 16, जो कि आज का ही फिक्सचर है। मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रहा, आज का ही फिक्सचर है। क्वार्टर फाइनलिस्ट है SC दिल्ली वर्सेस FC रैंगडाई एंड इंडियन आर्मी वर्सेस ईस्ट बंगाल, जो कि क्वार्टर फाइनलिस्ट है। मतलब ये 4 क्वार्टर फाइनलिस्ट है, जो कि इन लोगों का मैच होगा 16 अगस्त को खेला जाएगा। एंड इन क्वार्टर फाइनल एंड रेस्ट ऑफ द 4 क्वार्टर फाइनलिस्ट है हमारे मोहन बागान वर्सेस जमशेदपुर, शिलोंग लाजोंग वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो कि जिसका फिक्सचर खेला जाएगा 17 अगस्त को। तो ये है हमारे 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट इन डुरैंड कप। सो या आई विल conclude with this. So thanks for watching my video. Thank you.